Hello, students. Today we'll do the poem A Legend of the Northland, which is in the fifth chapter, The Snake and the Mirror, in your book Beehive. This poem was composed by Phoebe Cary, who was an American poet. Here you can see Phoebe Cary's picture. So, before we go any further, and learn the poem through line wise explanation, let us know what is Northland. So, here, in order to understand what is Northland, you will have to look at the entire map of New Zealand. So, here you can see New Zealand's entire map, and here towards the north is the region called Northland. So, this legend belongs to Northland. This poem is a ballad. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. So ये जो poem है Legend of the Northland, ये एक ballad है, and a ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballad एक गाना होता है जिसके जरिए से एक कहानी सुनाई जाती है. So ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. बैलेड्स जो होती हैं वो हर कल्चर का एक पार्ट है, वेस्टर्न कल्चर का भी पार्ट है और ऑक्सीडेंटल कल्चर का भी पार्ट है. सो ये जो बैलेड्स हैं ये मौखिक रूप से सुनाई जाती हैं और एक जनरेशन को दी जाती हैं दूसरी जनरेशन के द्वारा. सो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ऑल्सो अ बैलेड. So this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. इस पोएम में, इस बैलेड में एक कहानी का वर्णन है जिसमें एक औरत जो कि बूढ़ी है वो सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है अपनी लालच की वजह से. सो लेट्स नाउ नो हु वाज सेंट पीटर. आओ अब हम सेंट पीटर के बारे में जाने कि सेंट पीटर कौन थे. So look at this picture very carefully. Here you see Jesus Christ and here is Saint Peter, and on either side of Jesus Christ are standing his other disciples. So Jesus Christ जब दोबारा look at this picture. In this picture you find here Jesus Christ standing and here Saint Peter. So Jesus Christ is handing something over to Saint Peter. So on either side of Jesus Christ you can see his other disciples. So इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, ये जीसस क्राइस्ट है और ये सेंट पीटर है. जो सेंट पीटर थे वो जीसस क्राइस्ट के एक चेले थे और जीसस क्राइस्ट ने इनको जिम्मेवारी दी थी कि पूरे संसार में आपको क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है. लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. सो ये जो कहानी है अभी आप पोएम के ज़रिए से पढ़ने जा रहे हैं, ये नॉर्थलैंड की है और नॉर्थलैंड बहुत ही दूर है और सर्दियों में नॉर्थलैंड में जो दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत ही लंबी होती हैं. इतनी लंबी कि अगर आप काफ़ी घंटे भी सो लो तो भी रात कम नहीं पड़ती. दैट इज द नाइट्स एट नॉर्थलैंड ड्यूरिंग विंटर्स आर वेरी वेरी लॉन्ग. Where they harness the swift reindeer. Here in the picture you can see this animal is a reindeer. Swift means very fast. Harness means this you see equipment attached to the reindeer in order to use it as a means of transport. So where they harness the swift reindeer to the sledges. This means of transport is called sledge. सो नॉर्थलैंड में सर्दियों में इतनी स्नो पड़ती है कि वहाँ पे कोई और व्हीकल नहीं चल सकता. तो जो वहाँ के एनिमल्स हैं रेनडियर्स, उन्हीं को लोग इस्तेमाल करते हैं इधर उधर जाने में.
तो वो उनको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है तो बच्चों को मोटे मोटे कपड़े डाले जाते हैं जो कि एनिमल स्किन से बने होते हैं, और उन कपड़ों में वो बेयर कब्स जैसे लगते हैं। हियर यू कैन सी फैक्सिमिली of a child looking like a bear's cub. So they tell them a curious story. So उस नॉर्थलैंड में एक कहानी सुनाई जाती है अक्सर बच्चों को। I don't believe it is true, the poet says that she doesn't believe this story is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. And the poetess says, though she doesn't believe in the story, but she believes there is a lesson to be learnt by all of us. So she says कि वो हमको ये कहानी सुनाने जा रही है जो कि अक्सर नॉर्थलैंड में सुनाई जाती है बच्चों को, और पोएट खुद मानती है कि ये कहानी सच्ची नहीं है, लेकिन इस कहानी में जो एक लेसन है वो सबके लिए ज़रूरी है, वो हर इंसान को सीखना चाहिए, इसीलिए वो अब हमें एक कहानी सुनाने जा रही है, वही कहानी जो नॉर्थलैंड में अक्सर लोगों को या बच्चों को सुनाई जाती है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. So you see, ये बहुत पुराने समय की बात है जब सेंट पीटर इस दुनिया में रहते थे। वर्ल्ड बिलो मीन्स दिस आर वर्ल्ड। So now he lives in heaven. It is believed that all the great souls live in heaven. परमात्मा के स्वर्ग में रहती हैं। लेकिन जब सेंट पीटर जिंदा थे और जब जीसस क्राइस्ट ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की, वो इधर उधर जा रहे थे दुनिया में प्रीचिंग करते हुए, क्रिश्चियनिटी का मैसेज सबको देते हुए, और ऐसे ही चलते चलते वो नॉर्थलैंड पहुंचे। सो ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे और एक देश से दूसरे देश में जाते थे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। इसी तरह चलते चलते वो नॉर्थलैंड पहुँचे, और नॉर्थलैंड में पहुंचकर वो एक पर्टिकुलर घर के आगे पहुँचे, वेयर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, और उस घर में एक छोटे कद की बूढ़ी औरत केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और उसको वो हार्थ इज़ ए फायर प्लेस, मतलब जहाँ पे आग लगी होती है, आग जलाई होती है सर्दियों में, सर्दी से बचने के लिए उस जगह पे वो केक बना रही थी अपने घर के अंदर, ऐसी बूढ़ी औरत। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। सो सेंट पीटर को काफ़ी भूख लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने व्रत रखा हुआ था। ये जो डिवाइन बीइंग्स होती हैं ये बहुत कम खाती हैं, और इनका सारा ध्यान परमात्मा के नाम की तरफ होता है, परमात्मा के नाम को दुनिया में फैलाने की तरफ होता है, तो उनका ध्यान खाने पीने की तरफ नहीं होता। लेकिन काफ़ी दिनों में एक आध बार वो खाते हैं। इसी तरह सेंट पीटर ने भी काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं था, और जब वो उस औरत के दरवाजे तक पहुँचे, उनको बहुत भूख लगी हुई थी और वो काफ़ी वीक फील कर रहे थे, तो उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उनको एक केक दे दे उन केक्स में से जो उसके पास काफ़ी थे। तो उस ओल्ड वूमन के पास काफ़ी केक्स पड़े थे, और सेंट पीटर ने उसको रिक्वेस्ट की कि उन केक्स में से एक केक वो बूढ़ी औरत उनको दे दे। अच्छा, क्योंकि वो वूमन लालची थी तो उसके पास जो केक्स पड़े थे वो सारे बड़े बड़े थे। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो उसने सेंट पीटर को देने के लिए केक बनाया छोटा सा। बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो जो ही उसने वो छोटा सा केक बना के अवन में डाला और पकने लगा, और जब वो केक पक रहा था तो उस लालची औरत ने उस केक की तरफ देखा और उसको लगा कि ये केक तो बहुत बड़ा है और ये केक वो सेंट पीटर को नहीं दे सकती। सो यू सी बेटा, दिस इज हाउ greedy people behave. They find it very difficult to give away something to someone.
So therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. So उस लालची औरत ने क्या किया, एक और केक को ऐसे रोल किया, ठीक है, उसने और छोटा केक बनाया और उसको अवन में डाल दिया। और जब वो केक पक रहा था उसने फिर उस केक की तरफ देखा और उसे वो केक भी बहुत बड़ा लगने लगा कि अरे ये केक भी तो बहुत बड़ा है। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट। तो उसने फिर क्या किया, उसने एक और बहुत ही छोटा पीस ऑफ डो लिया, डो मीन्स गूंदा हुआ आटा, और उसको रोल किया ऐसे और काफी पतला बना दिया उसने, इतना पतला जितना कि वेफर होता है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, और फिर उसने उस पतले से केक को भी बेक करना शुरू कर दिया। और जब उसने फिर उस केक की तरफ देखा जो कि बहुत ही पतला था, उसके दिल में फिर ये लालच आ गया कि अरे ये तो केक बहुत बड़ा है, मैं ये सेंट पीटर को कैसे दूंगी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो उसने सेंट पीटर को कहा, सुनिए, ये जो मेरे केक हैं, जब मैं ये खुद खाती हूँ तो मुझे ये बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब मुझे इनको आपको देने की टर्न आई है, जब मुझे इनको आपको देना है, तो ये मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो उसने अपने जो सारे केक थे वापस शेल्फ पे रख दिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, ये सब देखकर सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखे थे। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और इस औरत का लालच देखकर सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आ गया। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो सेंट पीटर ने गुस्से से कहा, ए औरत, तू बहुत ही लालची और सेल्फिश है, राइट? तुम जैसी औरत को ह्यूमन बीइंग बनने का कोई हक नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें ह्यूमन बीइंग बनाया, अपनी सारी चीजें तुम्हें दी हैं, और तुम इतनी लालची हो कि तुम डिजर्व नहीं करती हो एक ह्यूमन बीइंग बने रहने में। तुम डिजर्व नहीं करती हो कि तुम्हें जो परमात्मा ने खाना दिया है और जो रहने के लिए जगह दी है, वो तुम उसमें रह सको, राइट? तो तुम ह्यूमन बीइंग बनने के डिजर्व नहीं करती, और जो ह्यूमन बीइंग्स को गॉड ने ब्लेसिंग्स दी है उनको एंजॉय करने के लिए भी तुम डिजर्व नहीं करती। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood. और फिर सेंट पीटर ने उसको कहा कि अब से तुम उतनी ही मेहनत करोगी जितनी की पंछी मेहनत करते हैं। सारा दिन वो अपने खाने के लिए इधर उधर उड़ते हैं, भटकते हैं, मेहनत करते हैं, और अपनी चोंच से इधर उधर चीज़ों में डीप होल करके वो खाना निकालते हैं। जैसे कि लकड़ी में से कुछ पंछी लकड़ी में से लकड़ी को ऊपर बार बार चोंचें मार के उसमें से होल करके कीड़े निकालते हैं या खाना निकालते हैं। सो देन शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड। जैसा ही सेंट पीटर ने इतना कहा, और वो जो बूढ़ी औरत थी वो चिमनी के जरिए से, ऐसे यहाँ आप देख सकते हो, चिमनी के जरिए से पंछी बन के बाहर उड़ गई, वो कोई शब्द नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टू टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और चिमनी के टॉप में से ये औरत ऐसे उड़ी और चिमनी से बाहर वुड पैकर पंछी बन के बाहर निकल गई। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, और सेंट पीटर के वर्ड्स ने, की कर्स ने उसको औरत से एक पंछी बना दिया। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। अच्छा, उस बूढ़ी औरत ने, जब उसको सेंट पीटर ने कर्स दे के वुड पैकर बनाया, उसने रेड कैप डाली हुई थी। तो वो जो रेड कैप है, हेयर यू कैन सी वुड पैकर का जो टफ्ट है वो
जो ये पार्ट है वो रेड होता है, क्योंकि उस औरत ने जब उसको कर्स देख के वुड पैकर बनाया गया तब लाल कैप डाली हुई थी, राइट, और वो वैसी की वैसी लाल ही रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, और जो उसके कपड़े थे वो जल के राख बन गए, काले रंग की राख बन गए, इसीलिए उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो ब्लैक है। सो एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और बस उसके बाद हर गांव में पढ़ने वाला जो लड़का है उसने उसको एज ए वुड पैकर देखा जंगल में, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और अब वो औरत वुड पैकर बन के पेड़ों के बीच में रहती है आज तक इस दुनिया में, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो अपना खाना ऐसे चोंचे मार मार के लकड़ी में से होल्स कर करके उसमें से कीड़े निकाल के अपना खाना खाती है। दैट्स इट। So, beta, the poem is over, and from this poem, we learn that we should avoid this evil called greediness. हमें कभी लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। Thank you very much.